Finally, to all dear visitors and guests, all professors, teachers, and students, we all welcome you on this ceremony. So please give all a warm applause. To continue program, we kindly invite Bante Banyasamy to express the meaning of today's Vesak celebration. Good evening, all of us, Sangha and dear guests. Have gathered today at the Bodhi tree of the Buddhist department for the great Vesak ceremony of the years 2568 BE. Vesak or Buddha Day is the most important culture and spiritual festival in the Buddhist tradition, which happened on the first full moon day of the fourth lunar month. Vesak is the making of the three great events in Lord Buddha's life. First is his birth in Lumbini. Second is his enlightenment in Bodh Gaya under the Bodhi tree. And that is his passing into Mahaparinirvana in Kusinagar. Lord Buddha was born as a royal prince in India on the full moon day of April in the year 624 BCE in Lumbini, the capital of Kapilavatthu. His name was Siddhartha Gautama. His father was King Suddhodana Gautama, and his mother was King Mahamaya. According to history, 2,568 years ago, on full moon night, while sleeping in the palace, Queen Mahamaya had a vivid dream. She felt upset being carried away by four devas to Lake Anotada in the Himalayas. The deva bathed her, clothed her, and adorned her with flowers and perfume. Soon after, a white elephant holding a white lotus flower entered her one through her right side. Finally, the elephant disappeared and the queen awoke. She knew she had been delivered an important message, as the elephant is a symbol of greatness in those times. The king sent the wise man to interpret the meaning of the dream. The wise man said, "Your Majesty, you are very lucky. The deva has chosen our queen as the mother of the purest one, and the child will become a great being, either a world ruler or an awakened one for the benefit of humankind." The king and the queen in the whole kingdom waited eagerly for the birth of the new prince. The child was given the name Siddhartha Gautama. Later, it became clear the prophecy of the wise man came true. Siddhartha Gautama became Lord Buddha, the fully awakened one. He had transcended beyond the condition of the rebirth and suffering. After Lord Buddha achieved his awakening, by observing, he found that all sentient beings are fully capable of enlightenment as well. He gave us the strong belief that all of us can attain Buddhahood and achieve liberation like him. Here, we see that the verse of the Buddha has a great significance for the well-being of mankind. Thank you. Từ về lâm tí ni đấng thế tôn đàn xanh, hoa vô ưu tiên đường nghe thương thơm người hương. Thành ca thì là thế xóa gieo vui chảy bừng sáng, người hân hoan loan tin vui đến đẹp đã thấy tư ra đời. Ánh sáng như lai diệt thoát sân si, sáng soi đạo vàng
một in Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy người. मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि वो संघ माता जी के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। आदरणीय धर्मगुरु श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच परम पूज्य श्रद्धेय परम आदरणीय जिनके रोपित किए हुए संस्कार इस परिवार को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसित कर रहे हैं, परम पूज्य संघ माता डॉक्टर मुक्ति जी के चित्र सम्मुख समस्त मंच दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्चन करते हुए उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहे स्थित हैं और उनके संस्कार हमें निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी माननीय रिंचल लामो बहन और सम्मानित मंच में सबके नाम लेकर समय नहीं आप लोगों का खराब करना चाहता, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी मनीषी। सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए उनको याद करता हूँ और उनको उनकी जो कृपा हुई पूरे समाज पे, पूरे विश्व पर उनको जो कृपा हुई, जो उन्होंने ज्ञान दिया और उस ज्ञान के बूते पे आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। ये तथागत बुद्ध का ही ज्ञान है कि इसको अगर पालन किया जाए, इसको माना जाए तो ये समस्त संसार में शांति ला सकता है और समस्त संसार में जो आज उथल पुथल मची हुई है उसका अगर देखा जाए कि क्या इलाज क्या है उसका, तो केवल तथागत बुद्ध की शिक्षा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो डॉक्टर मुक्ति मेरी धर्मपत्नी थी और मेरे जीवन में मैं कहूँ कि आज मैं जिस स्थान पर भी हूँ, जो कुछ कर पाया हूँ, उसमें उनका अधिकांश भाग उन्हीं का है। अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो मैं आज यहाँ ना पहुँचा होता। उनके बारे में तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि जो शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं, डिक्शनरी में मिलते नहीं हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनके बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि उनकी तथागत बुद्ध की जब मैं शरण में गया था तो मेरा विवाह हो चुका था और मैंने उनसे ये प्रस्ताव किया कि मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ, बौद्ध मत अपनाना चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने पूरा मेरे से समझा पहले कि बौद्ध मत क्या होता है। उस समय तक उनको बहुत ज़्यादा बौद्ध मत के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे से समझने के बाद फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे स्वीकार है, तुम बौद्ध मत स्वीकार कर रहे हो तो मैं भी स्वीकार करूँगी। और हमारे पूरे परिवार ने बौद्ध मत को अंगीकार किया और मैं तो पीछे रह गया, लेकिन वो मुझसे कहीं आगे निकल गई और इतनी आगे निकल गई कि वो अपने देश ही नहीं, वो विश्व विख्यात एक तरह से मैं कहूँ कि हो गई थी। क्योंकि संघा माता का जो उनको ये जो उपाधि दी गई, ये म्यांमार के संघा कमेटी के महासचिव संघ राजा वेनरेबल चंदीमा अभिमानसा के द्वारा उनको बर्मा में, म्यांमार में बुलाकर उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। और अब तो जहाँ तक डॉक्टर मुक्ति का प्रश्न है, तो आप जानते ही हैं कि हमारे इस बौद्ध विहार के अंदर डॉक्टर मुक्ति की याद में हम लोगों ने यहाँ पर एक स्तूप बना रखा है और हम हमेशा जब भी यहाँ से निकलते हैं तो एक एक पल उनके जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उन्होंने बताया, वो हमको याद आता है। और मैं ही नहीं, समस्त शुभार्थी के जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर याद करते हैं। ये एक अवसर है आज बुद्ध मेले का जो हम लोगों ने शुरुआत की है, वो आज उनका परिनिर्वाण हुआ था। इसी दिवस को हम लोगों ने आज उनको भी स्मरण करने के हमने दिन उचित समझा और तथागत बुद्ध को भी हम लोगों ने धन्यवाद देने के लिए और कृपा उनकी है उसके लिए हमने उनको धन्यवाद देने का आज ही यहाँ पर बुद्ध मेले का शुरुआत हमने की है। तथागत बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सभाघर में उपस्थित भिक्षुगण, भिक्षुणीगण, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज यहाँ पर शुभार्थी विश्वविद्यालय में वैशाख पूर्णिमा के दिन को विलंब के साथ थोड़ा कुछ दिन के बाद हम मनाने का अवसर आज यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ संघ माता जी के परिनिर्वाण दिवस भी आज के दिन मना रहे हैं। तो ये एक ऐसा संगम है
एक ऐसा शुभ दिन है जो हम सब के जीवन में बहुत ही उम्मीदें लेकर आते हैं ऐसा दिन, क्योंकि यूं तो हम 365 दिन हमारे कार्य, हमारे सोच, हमारे विचार सब हमेशा शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमें अपने कर्मों को हमें कैसे आचरण करना है उनको याद दिलाते हैं ऐसे दिन। तो तथागत बुद्ध के अनुयायी होने के नाते हम सब का कर्तव्य यही होना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने इस संसार में आके जिस तरीके से उन्होंने जन्म से लेकर मरण तक के श्रृंखला उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए, हर श्रृंखला में उन्होंने एक सीख दिए है। हम सबको उनके उस सीख को समझने की ज़रूरत है। सुभारती विश्वविद्यालय और संघ माता के फाउंडेशन आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। बुद्ध के वाणी को हम सबको पुनरावृत्ति करने का एक अवसर आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम कहना चाहूँगी। नमो बुद्धाय।
मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धार हैं, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर कर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, संभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। गुरु नानक जी का यह प्रवचन है, शब्द है गुरु नानक देव जी का। बाबा जी कह रहे हैं श्री राम नामा उच्चर मना। आगे जवाब आया नहीं उच्चरते नहीं करते तो फिर आगे जम दल बिखम गना, आगे जमों का दल खड़ा है तुझे पकड़ने के लिए। अगर राम नाम नहीं जपया तो फिर ऐसा ही होगा, पकड़ लेंगे तेरे को। सार मंडोली राख्या देवरा पीतर बैठी साधना, साधना है आत्मा है। नित अमृत केर करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना। पांच जने इन्हों लुट रहे ने, इसका ध्यान ही नहीं, इसे भी लूट रहे ने मुझे तारे। फिर ढाए मंडोली लूटिया देवरा, ढा दिता है सारा कुछ, शरीर मिट गया, खत्म हो गया। साधन पकड़ी एक जना, आत्मा को पकड़ लिया एक को, कली को, बाकी सब भाग गए। जब डंडा गल संगल पड़िया, जमादार संगल गल में पा दिया गया। फिर आगे है कामन लोड़े सोना रूपा। कामन स्त्री कह दी है मुझे काम सोना रूपा माया चाहिए। मित्र लड़ेन सो खादा था। मित्र कहते जा रहे हैं कि मुझे खाने पीने के लिए मिलता रहे, बाकी प्रीत नहीं है हमारी, प्रीत नहीं ज़्यादा। हम प्रीत करें प्रभु से, संसार से नहीं। संसार से उतनी को प्रीत रखें जितना को हमारा व्यवहार है। अगर व्यवहार छोड़ दिया फिर नहीं, व्यवहार तो करना ही है, पर इतनी प्रीत ना बना लें कि संसार साथ ही प्रीत बन जाए, निरंकार छूट ही जाए। बाबा जी कह रहे हैं श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना। आगे जम दल बिकम कना, आगे जम दल बिकम कना, श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना, श्री राम नाम उच्चर मना।
जगत में डंका बाजी रहा। ओ खुद भगवानी ओ थारी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाजी रहा। ओ खुद भगवान ओ थारी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाजी रहा। जगत में डंका बाजी रहा, जगत में डंका बाजी रहा, जगत में और डंका बाजी रहा, जगत में डंका बाजी रहा। बोली श्याम प्यारे की, बोली मोर मुकुटवाने की। नजरें पहले हाय मेरी निंदिया उड़ गई, अख लड़ गई, अख लड़ गई, अख लड़ गई तुझसे राधे मेरी तो अख लड़ गई, अख लड़ गई तुझसे राधे मेरी तो अख लड़ गई। काली कमली बाला मेरा यार है, काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली बाला मेरा यार है, यार है, मोहन तू दिलदार है। बुद्धर उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। बुद्धर उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। बुद्धर उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। नजर के सामने जिगर के पास वो
सुभारती विश्वविद्यालय, MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट तथा संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल फाउंडेशन ने ये सारा यहाँ पर मेला सजाया था और आप लोग यहाँ पर आए तभी इसकी रौनक बनी है। मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मेले का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो बात हमारी थी डॉक्टर अंबेडकर साहब से हम शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को कुछ लोगों ने एक वर्ग समुदाय का ही नेता मान लिया है, जबकि अगर हम देखें तो वो तमाम भारत के जन जन के सर्वप्रिय नेता हैं, जिन्होंने हर व्यक्ति के बारे में सोचा और हर व्यक्ति के कल्याण की बात करी, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। और अगर हम उनके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस देश के अंदर कोई भी युग पुरुष कहलाने का अगर कोई अधिकार रखता है तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दो जन जिनको कि हम युग पुरुष का दे सकते हैं। अब हम बाबा साहब के ही द्वारा दी गई एक शिक्षा की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश को संपन्न बनाना है, इस देश को एक रखना है, इस देश को वास्तव में विश्व को बनाना है, तो हमें इस देश को बौद्धमय बनाना होगा। और बौद्धमय का उनका यहाँ पर पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, बौद्धमय बनाने का अर्थ उनका किसी धर्म संबंध से नहीं था। उनका अर्थ था कि जहाँ पर प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव बहता हो, उसको जिया जाता हो, वही बनाना बौद्धमय बनाना होता है। आज यहाँ इस बुद्ध मेले के समापन के अवसर पर सभी आए हुए लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा सुभारती को और उनके साथ जो भी इंस्टीट्यूट जुड़े हैं, उन्होंने एक इतना अच्छा मेला और इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया है। और इसके लिए जो संस्थापक जी भी हैं, अतुल जी, उनका परिवार, उनके यूनिवर्सिटी के लोग, सभी मंच पे आसीन लोग, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा और सभी को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आप लगातार ले रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति, और मुझे कई बातें बहुत अच्छी लगी हैं जो उन्होंने तीनों बातें बताई कि हम लोग भी यही देखते हैं कि BR अम्बेडकर जी को एक वर्ग, एक समुदाय के साथ जोड़ा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। लेबर के लिए, वुमेन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जो उन्होंने एक बौद्धमय होने की बात की, वो भी बहुत ज़रूरी है कि बौद्धमय होना क्या है। और फिर आखिरी बात जो सनातन के बारे में बोली, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट और गंभीर भी थी। इसी बात के साथ मैं पुनः सभी को जो इस प्रोग्राम से, इस मेले से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना समय दिया, जिन्होंने अपना यहाँ पे बहुत अच्छी कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई, लोगों ने इसको व्यवस्था में बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सवेतियो विवजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीली शनिच्चं वर्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवानो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावे न सदा सति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।